हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ ईयर. ओके, सो ईयर हैज़ गॉट थ्री पार्ट्स होता है ईयर का. So three parts are the outer, middle and the inner ear. लाइन बाय लाइन सारे को देखेंगे. आउटर ईयर में वी हैव द पिन्ना, प्लस द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. ठीक है, so we have the pinna and the external auditory meatus in the outer ear. Okay, now there is a tympanic cavity that divides outer and middle ear. ठीक है, तो outer and middle ear को divide करने के लिए एक sorry, not cavity, it's a membrane, tympanic membrane. So एक tympanic membrane जो है वो divide करेगा outer and middle ear को. Okay, and this tympanic membrane is also called the ear drum. Okay, now the tympanic membrane ear drum के बारे में है that on its outside it is covered by skin and on its inside by mucous membrane. ठीक है, तो the side facing the middle ear, that is the inside side. ठीक है, तो इनसाइड साइड कौन सा होगा, इसका अंदर वाला पार्ट कौन सा होगा, द साइड फेसिंग मिडिल ईयर. ओके, नाउ देर आर वैक्स सिक्रीटिंग cells. Okay, wax secreting cells and also hairs. अच्छा, वैक्स सिक्रीटिंग सेल अलग है एंड हेयर्स अलग है. हेयर अलग से प्रेजेंट रहेगा, हेयर में से वैक्स नहीं निकलेगा. सो देर आर वैक्स सिक्रीटिंग सेल एंड ऑल्सो द हेयर्स प्रेजेंट इन पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. Now external auditory meatus is also called the external ear canal. So it is the external ear canal. Okay, so if this is the pinna, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये जो tympanic cavity तक, this is the tympanic cavity. So this is the tympanic cavity. This is the tympanic cavity. This is the ear canal. This is the canal, the external auditory meatus, and this is the pinna. Okay, now moving on to the next part of the ear, that is the middle ear. Okay, so middle ear में it is mainly constituted by the three bones. So three bones, that is the malleus, that is also called the hammer, incus, that is also called the anvil, and we have got the stapes, that is also called the stirrup. तो इनका शेप मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज का जो शेप है दैट रिसेंबल्स विथ हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. देयरफॉर इनका नाम हैमर, एनविल, स्टिरअप भी कहा जाता है. ओके, नाउ स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. इट इज द स्मॉलेस्ट बोन in humans.
ठीक है, तो स्टेपीज जो है वो सबसे छोटा बोन है ह्यूमन बॉडी का. नाउ द मेलियस इज द वन दैट इज attached to the tympanic membrane, and the stapes is the one that is attached to oval window. तो oval window जो है that is the basically that is the part that faces the middle ear, but it is the part of the cochlea. Okay, तो आगे हम लोग देखते हैं उसके बारे में. Now the efficiency of the transmission of the waves जो आता है ear तक, तो उसे increase करने का जो काम होता है that is of these middle ear parts, that is the malleus, incus and stapes. Okay, so these bones work in a chain like fashion and increases the efficiency of transmission of sound waves to the middle ear. Okay, now there is a special tube here that is called the eustachian tube that opens in here. Eustachian tube. Now what is eustachian tube? तो ये एक tube है that connects the pharynx and the middle ear. So it is a tube that connects pharynx and middle ear. ठीक है, दोनों को connect कर रहा है. And its function is to equalize pressure on both the sides of the tympanic membrane. Okay, so क्या होता है कि अगर सपोज बहुत लाउड साउंड हमारे ईयर तक जा रहा है, ठीक है, एक लाउड साउंड के एक्सपोजर में अगर हम आते हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट ईयर ड्रम को अपने पोजीशन में हेल्ड करके रखे रहने के लिए ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ओके, ये एक्सटर्नल ईयर का है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है पूरा. यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब लगा हुआ है नीचे में. दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है, दिस इज द canal, the external ear canal, or the external auditory meatus. This is the tympanic membrane, TM. Okay, now what will happen अगर इधर से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी साउंड का आ रहा है तो ये रप्चर ना हो जाए, इसकी वजह से यहाँ से एयर आके यहाँ पे प्रेशर लगाएगा. ठीक है, सो दैट ये बैलेंस्ड स्टेट में रहे, ऐसा ना हो कि ये रप्चर कर जाए ज़्यादा अगर साउंड आ गया तो. ठीक है, तो ये इक्वलाइज करता है प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द tympanic membrane. This is important and is often asked in the MCQs about the eustachian tube. Okay, now moving on to the inner ear, which is the most important part and हमें उसी पे ज़्यादा फोकस करना है. So about the inner ear. So the inner ear is a fluid filled लैबिरिंथ. इनर ईयर को लैबिरिंथ भी कहते हैं. ठीक है, याद रखना है दैट इनर ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द लैबिरिंथ. ओके, सो दिस लैबिरिंथ हैज गॉट टू पार्ट्स. अगेन टू पार्ट्स फिर से है इसका. द फर्स्ट पार्ट इज द बोनी पार्ट या फिर बोनी लैबिरिंथ कह सकते हैं. लैबिरिंथ प्लस द मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ. ठीक है, तो ये दो लैबिरिंथ का पार्ट है. लैबिरिंथ इज द इनर ईयर.
इनर ईयर का दो पार्ट है, एक बोनी पार्ट और एक मेम्ब्रेनियस पार्ट, एक बोनी इनर ईयर और एक मेम्ब्रेनियस इनर ईयर। ओके, नाउ ये एक चीज़ होता है जो स्टूडेंट्स को फिर समझ में नहीं आता है, दैट व्हाट इज़ द बोनी पार्ट एंड व्हाट इज़ द मेम्ब्रेनियस पार्ट। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट लाइक कि ये एक, जैसे हमारा स्कल बोन हो गया, स्कल में हमारा ईयर है, ठीक है, इनर ईयर इज इनसाइड इज मतलब स्कल का जो बोन है उसी में है। सो दिस इज सपोज द स्केलेटन, ठीक है, मतलब सपोज ये बोन है एंड इसके अंदर ये रेड रंग में एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। सो दिस इज इट, मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक और सिलेंडर है, ठीक है। सो दिस इज द रेड स्ट्रक्चर इज द मेम्ब्रेनियस पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा स्कल है उसमें देर आर वेरियस क्रिविसेस, ठीक है, वेरियस फोल्ड्स है, तो वेरियस क्रेस्ट एंड ट्रग है इन द स्कल एंड इन दैट फिट्स द मेम्ब्रेनियस पार्ट। और अगर ये मेम्ब्रेनियस पार्ट डायरेक्टली इस बोन के साथ कांटेक्ट में होगा तो जाहिर सा बात है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है या कुछ डैमेजेस हो सकता है। सो देयरफॉर अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट दैट सस्पेंड्स दिस मेम्ब्रेनियस पार्ट, मतलब मेम्ब्रेनियस पार्ट इस फ्लूइड में तैरता रहेगा, ठीक है, कभी भी टकराएगा नहीं विथ द बोन, ठीक है। सो दिस फ्लूइड पार्ट fluid is called perilymph, ठीक है। समझ में आ गया, जो स्कल है उसमें वेरियस क्रिविसेस होगा, वेरियस फोल्ड्स होगा, क्रेस्ट एंड ट्रग होगा उसका, जिसमें कि ये मेम्ब्रेन्स फिटेड रहेंगे बट वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा विद द बोन, एल्स डैमेज हो सकता है। देयरफॉर अ फ्लूइड इज फिल्ड सराउंडिंग इट एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द पेरीलिम्फ, और इसमें फ्लोट करता है मेम्ब्रेनियस पार्ट। ओके, नाउ so the bony part is what it is a series of channel within which lie the membranous labyrinth. Okay, so what is this bony labyrinth? It is a series of channels, the bony channels within which lies lies the membranous part, ठीक है। तो इसके अंदर मेम्ब्रेनियस पार्ट जो है वो फ्लोट करता रहेगा एंड देयर इज अ फ्लूइड सराउंडिंग दिस मेम्ब्रेनियस पार्ट एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द पेरीलिम्फ। ओके, इसी में ये फ्लोट करता रहेगा। नाउ मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर भी अगर इसके बाहर फ्लूइड है ना तो इसके अंदर भी फ्लूइड होगा, दिस फ्लूइड। So the fluid inside this membranous part is called endolymph, ठीक है। तो this fluid inside the membranous part is called the endolymph, and the fluid outside the membranous part in which the membranous part is itself suspended is called the perilymph. Okay, now the coiled portion of the labyrinth is called the cochlea. So the coiled portion of the labyrinth is called cochlea, ठीक है। तो कॉइल्ड पोर्शन जो रहता है लैबिरिंथ का उसे कहते हैं कॉक्लिया एंड देयर इज 2.5 टर्न्स ऑफ दिस कॉक्लिया, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक आप लोगों ने शेल देखा होगा, तो शेल किस तरह से कॉइल्ड अप रहता है, ठीक है, इस तरह से कॉइल्ड अप रहता है। सो इस तरह से ये कॉइल्ड रहेगा, 2.5 टर्न्स। द मेम्ब्रेन्स दैट कंस्टिट्यूट्स द cochlea divides the surrounding perilymph
into the upper scala vestibuli and the lower scala tympani. ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा. पहले लिखवा देते हैं, देन डायग्राम बनाएंगे. दैट द मेम्ब्रेन्स constituting the cochlea divides the surrounding perilimb into an upper scala vestibuli and the membrane that divides it into an upper scala vestibuli is called the resinous membrane. ठीक है, sorry, REISSINER apostrophe S. So it is the resinous membrane and into a lower scala tympani, and this membrane is called the basilar membrane. ठीक है, so this is the membrane that is called the basilar membrane. So you need to remember कि upper scala vestibuli जो बनाया वो बनाया रेजिनर मेम्ब्रेन और लोअर स्केला टिम्पैनी जो बनाया that is the basilar membrane. Okay, it's REISSNER apostrophe S. Okay, so now the space within the cochlea is called the scala media. Space between the cochlea is called scala media and is filled with endolymph. एंडोलिम्फ से भरा हुआ है वो. ओके, ये हम लोगों ने देख लिया था पहले ही एंडोलिम्फ के बारे में. नाउ एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, at the base of the cochlea, scala vestibuli ends at oval window and scala tympani ends at round window. Both these open into middle ear. हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा. ओके, सो ये जो दोनों ओवल विंडो एंड राउंड विंडो हैं ये मिडिल ईयर में ओपन होंगे. ओके, नाउ इसे कैसे याद रखना है, देखिए. सी, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोनी आउटर पोर्शन. इसी के अंदर एक मेम्ब्रेन रन कर रहा था, इजंट इट. इसी के अंदर एक, मैं रेड से दिखाता हूं, इसी के अंदर एक मेम्ब्रेन रन कर रहा था इस तरह से. ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गया. नाउ ये क्या हो गया, ये जो बाहर वाला ब्लैक स्ट्रक्चर, दिस इज द बोनी पार्ट. बोनी पार्ट, this is the membranous part. या membranous labyrinth, ये bony labyrinth बोल सकते हैं. Now see what happens. ये मैंने कॉक्लिया को खोल दिया है. कॉक्लिया जो है यूजुअली टर्न्स के फॉर्म में रहता है, जो पहले दिखाया था 2.5 टर्न्स रहता है कॉक्लिया में. ओके, नाउ देयर इज ओवल विंडो. मैं ओवल इसे दिखा रहा हूं. दिस इज द ओवल विंडो एंड दिस इज द राउंड विंडो. ठीक है, नाउ सी,
ये वाला पार्ट आपको कहा था किससे भरा हुआ रहेगा, पेरिलिम्फ से भरा हुआ रहेगा। सो दिस इज द पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ फिल्ड। यहां आपको दिख रहा है दैट दिस मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ द लैबिरिंथ, ये अपर मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ का, वो इसे एक ऊपर के कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है। एंड दिस ऊपर वाला कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द स्केला वेस्टिब्यूलाई। ठीक है, सो दिस अपर कंपार्टमेंट इज द स्केला वेस्टिब्यूलाई। ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस पार्ट का, ये जो मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ है, इसका कौन सा लेयर या फिर कौन सा पार्ट ये डिवीजन कर रहा है। सो ये जो ऊपर वाला इसका जो मेम्ब्रेनियस लेयर है, दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू एन अपर स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड दिस पार्ट इज द रेसिनर मेम्ब्रेन, रेसिनस मेम्ब्रेन। उसी तरह से ये नीचे वाला जो इसका लेयर है इस मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ का, ये इसे डिवाइड किस में कर दे रहा है, इनटू स्केला टिम्पैनी। तो कौन सा लेयर डिवाइड कर रहा है इसे, ये वाला जो इसका मेम्ब्रेन है ऑफ दिस मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, ये डिवाइड कर रहा है। एंड दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज द बेसिलियर मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या फील्ड है, इसके अंदर फील्ड है एंडोलिम्फ। ओके, इसके अंदर क्या फील्ड है, एंडोलिम्फ। समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जहां पे कि स्केला वेस्टिब्यूलाई मीट कर रहा है विद दैट ऑफ द स्केला टिम्पैनी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेलिकोट्रीम। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेलिकोट्रीम, ये आपको याद नहीं रखना है। जिस पॉइंट पे स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पैनी आपस में मीट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द हेलिकोट्रीम। ठीक है, सो हेलिकोट्रीमा बोलेंगे इसे, ये हेलिकोट्रीम। सो स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड स्केला टिम्पैनी जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द हेलिकोट्रीम। तो जाहिर सा बात है ना, इट इज सपोज दिस पेन इज अ सिलेंडर, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, दैट इज द रिफिल ऑफ इट। ठीक है, इसका जो लेड है दैट इज द मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। ठीक है, तो वो इसके अंदर फ्लोट करता रहेगा ड्यू टू द पेरिलिम्फ फ्लूइड। ठीक है, और जो रिफिल है उसके अंदर खुद का इंक भरा हुआ है, सो दैट बिकम्स इट्स एंडोलिम्फ। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पेन है, ये जो पेन का कवर है, दिस इज द बोनी पार्ट। नाउ इसमें इस तरह से सस्पेंड हो गया ये मेम्ब्रेनियस पार्ट। ओके, सो नाउ दिस मेम्ब्रेनियस पार्ट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द रेसिना मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, और ये डिवाइड कर दे रहा है इनटू अपर स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड द लोअर स्केला टिम्पैनी। ओके, ना ओवल विंडो में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या फिट हो रहा था, स्टेपीज फिट हो रहा था। तो स्टेपीज को मैं यहाँ पे एक ब्लू रंग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेपीज जो है वो फिट होके बैठा है। ठीक है, सो व्हाट इज इट, दिस इज द स्टेपीज बोन। ओके, नाउ स्टेपीज यहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो ये इस ओवल विंडो को मूव करेगा। अगर ये इसे वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो, तो क्या होगा कि ये इस ओवल विंडो को भी वाइब्रेट करेगा ना। अच्छा, नेमिंग नहीं किया, दिस इज द ओवल विंडो, इसीलिए ओवल शेप का बनाया है। एंड दिस इज द राउंड विंडो, देयरफॉर राउंड शेप का बनाया। ओके, राउंड विंडो। नाउ रिमेंबर दैट राउंड विंडो से कोई भी स्ट्रक्चर अटैच नहीं है, किससे अटैच्ड है, ओवल विंडो से। तो अगर ओवल विंडो में वाइब्रेशन आएगा तो इसमें भी वाइब्रेशन आएगा। ये पूरा फ्लूइड फील्ड है ना, ये पूरा फ्लूइड फील्ड है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड था, पेरिलिम्फ। तो पूरा फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा, पूरा फ्लूइड में वाइब्रेशन होता रहेगा। ऑल्सो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आर व्हाट,
इलास्टिक इन नेचर। तो मेम्ब्रेन इलास्टिक है तो जाहिर सा बात है इसमें भी वाइब्रेशन आ जाएगा इन द एंडोलिम, ठीक है। नाउ दिस वाइब्रेशन का स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ है? वाइब्रेशन को रुकना भी पड़ेगा ना, वरना ऐसा होगा कि हम एक बार आवाज़ सुने और वो वाइब्रेट किए जा रहा है, उसके अंदर का फ्लूइड होने को आवाज़ बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। सो वैसा नहीं होता। सो यहाँ पे ये जो राउंड विंडो है ये क्या रहता है? टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटर ऑफ वेव्स। वेव्स आके इसके दीवार से लगता है, इसके वॉल से लगता है और वेव्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ओशन का जो वेव्स है वो आके कोई माउंटेन पे लग रहा है और फिर वो शांत हो जा रहा है, ऐसा। तो जितना भी वेव्स यहाँ पे जनरेट हुआ इन द ओवल विंडो वो पूरा ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा इनटू दिस स्केला टिम्पैनी और आ जाएगा राउंड विंडो तक, और राउंड विंडो में टकराने के बाद सारा वेव्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर साउंड जो है वो कंटिन्यूसली सुनाई देता ही रहता, ओके। सो ये था अभी तक जो हम लोगों ने बात किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकलिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ कॉकलिया को पूरी तरह से खोल दिया है, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो पहले हम लोग इसका एक आप लोग की जो बुक में डायग्राम दिया पहले वो डायग्राम बना लेते हैं, देन हम लोग आगे देखेंगे अबाउट द ऑर्गन ऑफ कॉटी। So the diagram that is given in your book, I guess, is something like this. This is the bony part. ठीक है? Now see what happens that this is the membranous part. दिस इज द मेम्ब्रेनियस पार्ट, और ये थोड़ा थिक है एट द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स को इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है। अब डिवाइड हो गया अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में, ठीक है। दिस इज द मेम्ब्रेन। नाउ दिस मेम्ब्रेन इज द बेसिलियर मेम्ब्रेन। ये जो इसका नीचे वाला जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द बेसिलियर मेम्ब्रेन। ओके उसी तरह से इसका जो ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, दिस इज द रेजिनर मेम्ब्रेन। इट इज व्हाट? दिस इज द रेजिनर मेम्ब्रेन। ओके बाहर में कौन सा फ्लूइड फिल्ड है? पेरीलिम्ब। अंदर में कौन सा फ्लूइड फिल्ड है? एंडोलिम्ब। दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। नाउ ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो बेसिलियर मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, तो ये जो बेसिलियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा ऑर्गन ऑफ कॉटी। सो दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी, ओके। नाउ दिस ऑर्गन ऑफ कॉटी हैज गॉट सम हेयर सेल्स इन इट, तो हेयर सेल्स होंगे, दीज आर द हेयर सेल्स। Okay, so these are what? These are the hair cells of organ of Corti. आपको दिख रहा है ये एक apparatus की तरह है organ of Corti, इसके अंदर hair cells हैं। Now this hair cells are present in rows on the internal side of the organ of Corti. तो एक रो में present है इस तरह से, ठीक है। Now the basal end of these hair cells आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स। तो ये इसका जो बेसल पोर्शन है, ये पार्ट नीचे वाला पार्ट, इसे मैं रेड रंग से दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स रहेंगे। एफरेंट मतलब जो सिग्नल्स को यहाँ से ले जाएगा, तो फाइनली सिग्नल जाएगा ना ईयर से कहीं पे कॉर्टेक्स तक, तो ये जो रेड फाइबर्स है दीज आर द एफरेंट फाइबर्स on the base of these hair cells, ठीक है। Now a large number of stereocilia projects from the hair cell, so there are large number of these stereocilia are here, जो कि इस तरह से प्रोजेक्ट करता रहेगा from the hair cells. So what are these?
दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है, ये बाहर, ये पूरा स्ट्रक्चर इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी. नाउ दिस इज द स्टीरियोसीलिया, ठीक है, स्टीरियोसीलिया है. एंड अबव दीज, दैट इज मीन्स इस स्टीरियोसीलिया के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. तो मैं यहाँ पे एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन बना देता हूँ. So this is a thin elastic membrane present over this hair cells, and this is called the tectorial membrane. This is called the tectorial membrane. Okay. तो मैं आपको हियरिंग का यहाँ पे ही मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर लास्ट में एक बार बताना है. तो सी व्हाट हैपेंस, जैसे ही वाइब्रेशन आएगा, पहले मैं यहाँ पे सारा मेंशन कर दूँ, ये कौन सा है, ये दिस इज द स्केला टिम्पैनी, दिस इज द स्केला टिम्पैनी, दिस इज द स्केला मीडिया, दिस इज द स्केला सॉरी नॉट द स्केला मीडिया, इट्स स्केला वेस्टिबुलाई, दिस इज द स्केला मीडिया filled with the endolimb. Okay, so see what happens, जैसे ही वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन को मैं ब्लू रंग से दिखा रहा हूं with this arrow sign, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है वाइब्रेशन. सिंपल वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन यहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आर इलास्टिक, तो वाइब्रेशन यहाँ पे पहुंच गया इनटू द स्केला मीडिया. यहाँ से होता हुआ पूरा एंडोलिम्फ में होता हुआ पहुंच गया कहाँ, पेरिलिम्फ में. तो ये इसका मेम्ब्रेन भी तो वाइब्रेट करेगा, जो मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन आर इलास्टिक इन नेचर. नाउ ये जब वाइब्रेट कर रहा है, ये मेम्ब्रेन भी जब वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज द बेसिलियर मेम्ब्रेन. तो बेसिलियर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने के कारण ये जो हेयर सेल्स हैं इसके ऊपर, ऑर्गन ऑफ कॉटी इसी के ऊपर है ना, बेसिलियर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इसके अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो आपस में हिलेंगे. आपस में हिलने के कारण क्या होगा, स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के कारण क्या होगा, ये जो स्टीरियोसीलिया है ये इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर रब होगा, ब्रश होगा रादर, ठीक है. ब्रश जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कुछ साउंड का प्रोडक्शन होगा. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर ब्रश होता है वैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है, ठीक है. जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल अप्लाई हुआ ना, टच हुआ, मतलब क्या, ये स्टीरियोसीलिया इस अगर मेम्ब्रेन पे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे बार बार टच होगा तो बार बार इसमें क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके कहाँ पहुंच जाएगा, इस एफरेंट नर्व फाइबर में पहुंच जाएगा, और ये फिर चला जाएगा टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. दिस आर व्हाट, दिस इज द एफरेंट नर्व फाइबर्स इन रिलेशन टू हेयर सेल्स. हेयर सेल्स के साथ रिलेशन में थे, ठीक है, फाइन. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. यहाँ पे हम लोग लास्ट में फिर से देखेंगे, बट यहाँ पे डायग्राम में बताना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. सो वाइब्रेशंस हो रहा है, जैसे ही बेसिलियर मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होगा, ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर जो हेयर सेल्स थे उनका वाइब्रेशन होगा. उनका वाइब्रेशन होने से इनके ऊपर जो स्टीरियोसीलिया है वो बार बार टच करेगा इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, उसे ब्रश करता रहेगा. तो ब्रश अगर करेगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को तो उसके अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, नॉट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो स्टीरियोसीलिया है उसकी वजह से जो हेयर सेल्स हैं उसमें चेंजेस आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसमें, और इसकी वजह से यहाँ से ये एफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं उनमें सिग्नल जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये लेकर जाएंगे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. वहाँ पे जो हियरिंग सेंटर है वहाँ जाके फिर वहाँ पे वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ईयर एंड इट्स किस तरह से मैकेनिज्म है ऑफ हियरिंग. ओके, नाउ वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ईयर का दो काम होता है, द फर्स्ट वर्क वॉज हियरिंग, द सेकेंड वर्क इज बॉडी बैलेंस. तो वेस्टिबुलर apparatus. The vestibular apparatus is constituted by 3 semicircular canal. First of all, ये याद रखना है that it is located above the cochlea. cochlea से ऊपर रहता है, ठीक है.
Now the vestibular apparatus is constituted by 3 semicircular canal plus an otolith organ. Okay, an otolith organ. Now इस सेमी सर्कुलर कनाल का जो अरेंजमेंट रहता है वो इन ऑल द 3 प्लेन्स रहता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल है, 3 एक्सेस होता है, ठीक है, अप डाउन, राइट लेफ्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये 3 प्लेन में ये जो है वेस्टिबुलर अपैरेटस का जो 3 सेमी सर्कुलर कनाल है ये इस डायरेक्शन में, इस प्लेन्स में अलाइंड रहता है, ठीक है। ऑल आर 90 डिग्री टू वन अनदर। तो इस तरह से this is 90 degree, this is 90 degree, और एक कौन सा बच गया, this one, this is also 90 degree। इस 3 एक्सिस पे 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स अरेंज रहेंगे इस फैशन में। मैं इसे अभी सिंगल लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस फैशन में 3 सेमी सर्कुलर कनाल अरेंज रहेंगे। ओके, नाउ मैक्यूला इज समवॉट otolith organ is somewhat irregular shaped structure like this, ठीक है। एंड इसी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अलाइंड रहते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दूसरे में, तो समझ में आ जाएगा फटाक से। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तो हम सिर्फ एक सेमी सर्कुलर कैनाल अभी ले रहे हैं, ठीक है। सो वन एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्वोलन, ये इस तरह से स्वोलन रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड द एम्प्यूला। ओके, इसमें भी वैसे ही जैसे ऑर्गन ऑफ कॉटी में अरेंजमेंट था ना, इसमें भी सेम टू सेम अरेंजमेंट यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। बेस ऑफ द कनाल्स आर स्वोलन एंड दैट इज कॉल्ड द एम्प्यूला। ओके, एम्प्यूला बोलेंगे उसे। और हर एक एम्प्यूला में एक प्रोजेक्टिंग रिज होगा। जैसे हम लोग अगर बात करें, अगर हम इसे एनलार्ज करके देखते हैं और यहाँ इसका सेमी सर्कुलर कैनाल जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है, सेमी सर्कुलर कैनाल का सिर्फ एक एंड ही स्वोलन होगा, एम्प्यूला जिसे कह रहे हैं, दोनों नहीं, ठीक है। सो दिस इज एनलार्ज्ड व्यू। और यहाँ पे क्या देखा जाता है, दैट एक रिज होता है, एक इस तरह से रिज होगा इसके अंदर। रिज मतलब ऐसे उठा हुआ जगह, ठीक है, एलिवेटेड पोर्शन, एंड दिस रिज इज कॉल्ड द क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ठीक है, क्रिस्टा एम्पुलैरिस। समझ में आ रहा है। एंड इसके ऊपर फिर से वैसा ही अरेंजमेंट होगा कि हेयर सेल्स होंगे। ओके, इस पर क्या होंगे, हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे। हेयर सेल्स में से उसी तरह से प्रोसेसर स्टीरियोसीलिया इस तरह से निकला रहेगा, ठीक है। और फिर ये जो इसके अंदर भी फ्लूइड रहता है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके अंदर फ्लूइड रहेगा। अब जैसे ही इसका मूवमेंट होगा ना, वैसे ही इसका भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इससे वही सेम चीज़ कि यहाँ पे एफरेंट यहाँ पे रहेगा, एफरेंट नर्व्स वो यहाँ से इम्पल्स को लेकर चला जाएगा टू द ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है एम्प्यूला में, सेमी सर्कुलर कैनाल में। सेमी सर्कुलर कैनाल इज फिल्ड विद द फ्लूइड, ठीक है। इसका मूवमेंट जब आदमी आगे की तरफ चल रहा है या फिर हिल डुल रहा है, तो ये जो फ्लूइड है इन द सेमी सर्कुलर कैनाल, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, मूवमेंट स्टार्ट होते ही ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ये भी मूव करेगा और ये इस हेयर के जो स्टीरियोसीलिया इसे मूव कराएगा। एंड
ये वापस से एफरेंट नर्व के थ्रू चला जाएगा इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इन द ब्रेन। तो इस तरह से जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें ये प्रोसेस होता है। अगर हम लोग बात करें यूट्रिक्यूल एंड सैक्यूल्स का इन द ओथोलेट ऑर्गन, सो ओथोलेट ऑर्गन जो होता है ना उसका दो पार्ट होता है। ओथोलेट ऑर्गन का दो पार्ट होता है, दैट इज द यूट्रिक्यूल एंड सैक्यूल, ये दो पार्ट होता है, ठीक है। सो सी इट, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि तो आपको ये सोलन पार्ट्स दिख रहा है, सबका एक एक सोलन एंड है, एंड दिस इज कॉल्ड द एम्प्यूला। ओके, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, दिस इज द एम्प्यूला। ओके, नाउ सी दिस ओथोलेट ऑर्गन हैज गॉट द स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि क्रिस्टा एम्पुलरिस हम लोगों ने देखा ना, वैसे यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्यूला। ओके, इसके अंदर भी क्या रहेगा, ये इसका जो ऊपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सैक्यूल। मैं एक वेग टर्म में बता रहा हूँ, इसके इतने डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर डीप में जाऊँगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। सो सैक्यूल एंड दिस इज द यूट्रिक्यूल। इसके अंदर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड द मैक्यूला। क्या कह रहे हैं, मैक्यूला। एंड यहाँ पे इसके अंदर वही अरेंजमेंट होता है जैसे हम लोगों ने क्रिस्टा एम्पुलरिस के अंदर देखा, वही हेयर सेल्स रहेंगे, उनका मूवमेंट होगा जिससे कि फिर एफरेंट नर्व फाइबर से स्टिमुलस जाएगा टू द ब्रेन, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है, खाली इसका नाम यहाँ पे ये अपैरेटस का चेंज हो गया एंड वी कॉल इट द मैक्यूला। ओके, और ओथोलेट ऑर्गन जो होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें CaCO3 क्रिस्टल्स रहते हैं जिनका की रोल है वो हायर लेवल्स में है, ठीक है। तो ओथोलेट ऑर्गन में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूल में भी वही होता है, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। फिर इसका ही मूवमेंट होगा तो उसके अंदर मूवमेंट होता है, थोड़ा प्रोसेस अलग होता है बट द ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है इसमें भी। ओके, सो यहाँ पे हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में हो गया, आपको पता चल गया दैट सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओथोलेट ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इन द ओथोलेट ऑर्गन इट इज़ द मैक्यूला एंड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल इट इज़ द क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है, जहाँ पे कि परसेप्शन होगा, जहाँ से वो सिग्नल रिसीव करेंगे। ओके, नाउ फंक्शन हम लोग देख लेते हैं दोनों का। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं ये किस लिए होते हैं, फॉर द डायनेमिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, डायनेमिक बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। तो डायनेमिक स्टेट में चलते फिरते या फिर हम एक जगह बैठ के अपना हेड नॉड कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं तो ये जो बैलेंस मेंटेन्ड होगा, जो बैलेंस होगा वो ये सेमी सर्कुलर कैनाल करेगा, ठीक है। तो डायनेमिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड जो ओथोलेट ऑर्गन होता है, ओथोलेट ऑर्गन ये मेनली ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन के लिए होता है। ओके, ओथोलेट ऑर्गन जो है दैट इज मेनली फॉर टू सेंस ग्रेविटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन इन all the 3 axes, ठीक है, इन all the 3 axes। लीनियर एक्सेलरेशन तीनों एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइड एक्सिस, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन हो गया अबाउट द ओथोलेट ऑर्गन एंड द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो लास्ट लिखा देते हैं, मेंशन कर देते हैं, और तो ये बता दिया दैट इज क्रिस्टा and macula, these are the specific
receptors for क्रिस्टा किसके लिए था? क्रिस्टा एम्पुलैरिस, एम्पुलैरिस भी लिख देता हूँ, एम्पुलैरिस। सो क्रिस्टा एम्पुलैरिस किसके लिए था? फॉर द सेमी सर्कुलर एंड ओथोलिट organs respectively। तो ये पॉइंट याद रखना है एमसीक्यूज में और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी, ये अगर ईयर से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि क्रिस्टा एम्पुलैरिस इज फॉर द सेमी सर्कुलर कैनाल, whereas मैक्युला इज फॉर द ओथोलिट ऑर्गन, ठीक है। सो ये कंप्लीट होता है अबाउट द वेस्टिबुलर अपैरेटस। नाउ हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में फिर से वही डायग्राम पे चलेंगे। कहाँ गया वो डायग्राम? ओके, सो दिस डायग्राम, वापस इसी पे आते हैं। सो सी, जो हमारा पिन्ना है वो कलेक्ट करेगा साउंड को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसे ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम द ऑडिटरी कैनाल, द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। मैं इसे वर्बली बोल रहा हूँ, मैं इसे लिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने इसका मेजर पार्ट इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, उससे अटैच रहता है मैलियस, हम लोगों ने देखा। मैलियस वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। मैलियस फिक्स्ड रहता है विद द इनकस, इनकस फिक्स्ड रहता है विद द स्टेपीस। तो इन तीनों का वाइब्रेशन होगा। इनका वाइब्रेशन का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि एफिशिएंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो एक लीवर लाइक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो मैलियस, इनकस और स्टेपीज में जब वाइब्रेशन जाता है तो उसका एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। देन द स्टेपीज इज अटैच टू दी ओवल विंडो। ओवल विंडो पे वो अटैच रहता है। वो ओवल विंडो के मेम्ब्रेन को स्ट्रेच और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ओवल विंडो के अंदर जो कैविटी है, दैट इज़ द स्केला वेस्टिबुलाई, उसके फ्लूइड में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड में वाइब्रेशन होता है तो इट्स वाइब्रेशन इज देन ट्रांसमिटेड टू दिस रेसिनम मेम्ब्रेन एज वेल एज, आप लोग को अगर ये डायग्राम कहाँ गया, ये वाला डायग्राम अगर याद होगा, दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि स्केला वेस्टिबुलाई वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, इसका फ्लूइड एंड पेरिलिम्ब वाइब्रेट करके ये पूरी तरह से यहाँ से घूम के भी यहाँ तक आ सकता है, और एल्स ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा? इनटू दिस मेम्ब्रेनियस पार्ट, क्योंकि इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द रेजिनियर एंड द बेसिलियर मेम्ब्रेन। ओके, सो रेजिनल मेम्ब्रेन जो है वो भी एक मेम्ब्रेन है, तो इलास्टिक इन नेचर है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से खुद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वाइब्रेशन यहाँ से पहुँच गया यहाँ पे, दैट मीन्स इनसाइड द मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ का वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, देन बेसिलियर मेम्ब्रेन का, देन द पेरिलिम्फ हियर। ओके, बेसिलियर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। सो व्हाट हैपेंस दैट the hair cells in the organ of Corti starts vibrating and the stereocilia start to brush against the tectorial membrane. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जब जैसे वो ब्रश करेगा तो उससे क्या होगा कि चेंजेस होगा पोटेंशियल में, एंड द एफरेंट नर्व फाइबर विल कैरी दैट सेंसेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैं इसे वर्बली कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ बता दिया है, तो ये आप लोग के लिए समझना ईजी हो गया होगा। मैं इसे लिखा नहीं रहा। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सिंपल है, इस डायग्राम को बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ हमारा ईयर एंड आई कंप्लीट होता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज अबाउट द नोज। ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है, बस एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट द नोज एंड द टंग, ठीक है। सो नोज के बारे में, सो नोज contains the mucus coated receptors. Okay, so nose contains mucus coated receptors. Okay, and these receptors are called olfactory receptors. Okay, and this olfactory receptor is made of olfactory epithelium, okay, और ये जो olfactory epithelium है इसका
ये कंस्टिट्यूटेड रहता है by 3 types of cell. This olfactory epithelium has got 3 types of cells. Okay, so olfactory epithelium का 3 type of cell क्या है? So it has got the basal type, then it has got the supporting cells, and it has got the olfactory cells. तो ये 3 टाइप का सेल्स होता है. Now the neurons of the olfactory epithelium, neurons of olfactory epithelium extend into the outside environment directly into a pair of broad bean-shaped organs called olfactory bulb. And this olfactory bulb is the extension of brain's limbic system. Now see, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? That this olfactory bulb is the extension of the brain limbic system. सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है. Now इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट रहता है. तो यहीं पे देख लेते हैं डायग्राम में. See what happens that ये एपिथेलियम हो गया ऑफ द नोज, olfactory epithelium. So it has got 3 type of cell. सबसे पहला एक बेसल सेल्स होगा इस तरह से, ठीक है. तो मैं इसमें एक में लिख दे रहा हूँ बेसल सेल. तो सारे के सारे बेसल सेल्स होंगे, ठीक है. बीच बीच में कुछ कुछ सपोर्टिंग सेल्स होगा. दिस आर द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है. And the third cell is the olfactory cells and these are the neuron cells, ठीक है. तो इस तरह से ये एपिथेलियम का लाइनिंग का बाहर निकल जाएगा into the external environment इस तरह से, ठीक है. और यहाँ पे जो भी ओडर आएगा वो इसे रिसेप्ट करता है, ठीक है. सो दिस इज द olfactory cells, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो olfactory, क्योंकि ये एपिथेलियम है और एपिथेलियम धीरे धीरे शेड होता रहता है, कंटिन्यूस शेडिंग प्रोसेस के अंडर रहता है एपिथेलियम. तो ये कुछ समय के बाद डीजेनरेट हो जाएगा. जो ये olfactory सेल है ये थोड़े समय के बाद डीजेनरेट हो जाएगा. तो इसे फिर से लाना पड़ेगा. तो फिर से वापस लाने का काम होता है बेसल सेल्स का. सो ये क्या करता है, रिप्लेनिशेस olfactory सेल्स, वापस से डालता जाएगा ये, ठीक है. मतलब ये डिवाइड करेगा, फिर कुछ पार्ट बेसल सेल्स का रहने देगा और कुछ पार्ट बना देगा ये olfactory सेल. फिर वैसे डिवाइड करेगा, जैसे ही शेड अप हो जाएगा फिर से डिवाइड करेगा, फिर कुछ पार्ट बेसल सेल्स रह जाएगा, फिर कुछ पार्ट जो है वो olfactory सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो सपोर्टिंग सेल्स है ये बीच में इनका सपोर्टिंग में काम करता है. ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे ये क्या इसका फंक्शन रहता है. ओके, तो दिस वॉज अबाउट द नोज. यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज olfactory bulb जो है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम. और ये डायग्राम याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है सेकेंड पॉइंट का ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है. कि ये डायरेक्टली आगे इनटू द एक्सटर्नल सरफेस प्रोट्रूड कर जाता है, ठीक है. नॉर्मली आप ऐसा नहीं देखोगे कहीं पे, लेकिन इन olfactory epithelium जो प्रोसेसेस हैं ये डायरेक्टली बाहर प्रोजेक्ट करते रहेंगे, ठीक है. और फिर ओडर को कैच करके जो भी सेंसेशन है वो सेंड कर देंगे टू द कंसर्न्ड एरिया ऑफ द ब्रेन. देन लास्ट पॉइंट इज अबाउट द टंग. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है. नाउ रिमेंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द आई एंड द ईयर. उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. कभी कभी MCQs में मेनली ये टंग या नोज से पूछ लिया जाएगा. तो जो मैंने पॉइंट करवाया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. तो वो याद रहना चाहिए. इट इज़ अ गस्टो रिसेप्टर, ठीक है. गस्टो मतलब टेस्ट
सो टंग इज़ अ गस्टो रिसेप्टर, ये भी लिखा देता हूँ, रिसेप्टर भी लिख देता हूँ। तो टंग इज़ द गस्टो रिसेप्टर, GUSTO, ठीक है, गस्टो रिसेप्टर। Now has got numerous papilla, has numerous papilla, but all papilla don't have taste buds, ठीक है, सारे पैपिला में टेस्ट बड नहीं रहता, ये याद रखना है। मतलब कि ये पैपिला मतलब ऐसे आउटर प्रोजेक्शन, दीज आर द व्हाट, दीज आर द पैपिला। सो ये पैपिला हो गया। इसके अंदर स्पेशल टाइप का अगर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड द टेस्ट बड्स, ठीक है। ऑल पैपिला आर नॉट द टेस्ट बड्स, ये बात याद रखना है, ठीक है। बस यही इसमें देखना था और कुछ नहीं है इसमें। बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिसॉल्व्ड केमिकल्स, ठीक है। एयर में डिसॉल्व्ड एंड फूड में डिसॉल्व्ड केमिकल्स को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। सो ये हो गया अबाउट द टंग। ज़्यादा कुछ है नहीं टंग में भी और नोज़ में भी, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है मेनली, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो MCQs में मेनली पूछा जाता है फ्रॉम द नोज़ एंड द टंग, MCQs में। तो यही है कि पैपिला क्या सारे पैपिला टेस्ट बड्स होते हैं, तो नहीं होते हैं, ठीक है। देन ये जो बताया 3 टाइप के सेल्स होते हैं इसके और इस तरह का अरेंजमेंट होता है। एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। तो ये सारा कुछ याद होना चाहिए, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।